Hello, am I audible to all of you? Hello. Yes, sir. Okay. HOD sir, can we start the class or wait for some time? You can start. Okay, okay, sir. Okay, sir. So very good afternoon to all of you. So today we are going to perform two experiments, that is boost converter and designing boost converter and buck boost converter. Previous day we already discussed all the topic, but today also we are discussing these topics shortly. Okay. So first we are discussing about the boost converter. So what is the boost converter? Okay. It is step up boost converter. Okay, it is a step up converter. Okay, and it is an SMPS that step up. Okay, इसके अंदर switch mode power supply that can step up, and output voltage is the here output voltage is greater than the input voltage. Okay, and it is the fundamental circuit of the boost converter. You can see in the screen here inductor and capacitor both are connected as a filter. Okay, here inductor. Okay, inductor and capacitor both are connected and as a filter, and S here S is the switch. Okay, and here when positive triggered pulse come, then switch is on, and here when negative pulse come, then the switch is off. Okay, and when जब हम लोग इसमें पावर सप्लाई हम लोग ऑन करेंगे, ठीक है, तो तब इसमें करंट कैसे फ्लो होगा? इन द ऑन कंडीशन हाउ the current will flow in the boost converter. Here it is the current flowing path in the on state of boost converter. You can see here point A to inductor through से ये current कहाँ पे flow होगा? स्विच में जाएगा and स्विच से फिर सप्लाई में आएगा. जब बूस्ट कन्वर्टर ऑन स्टेट में रहेगा तब इस पाथ से जो येलो कलर से इंडिकेट किया गया है पॉइंट A टू इंडक्टर थ्रू स्विच एंड उसके बाद फिर सप्लाई में ऑन स्टेट में ऐसे करंट फ्लो होता जाएगा. ओके, एंड ऑन स्टेट में क्या होगा? इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन दिस पीरियड. ओके, सो दिस इज द ऑन स्टेट. ओके, एंड जब स्विच को हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है, व्हेन नेगेटिव पल्स कम द स्विच इज ऑफ. ओके, देन हाउ द current is flowing? Here you can see in the off state of the boost converter, current is flowing through point A to through inductor. ये उसके बाद डायोड से होते हुए कहां पर जाएगा? फिर ये लोड में जाएगा और लोड से होते हुए फिर सप्लाई में आएगा. So okay, and in this time polarity of L is changed. Okay, you can see polarity of L is changed, and here input voltage is greater than the output voltage. Okay, and that is why it is called boost converter. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब हम लोग ऑफ स्टेट में रहेगा बूस्ट कन्वर्टर, तो इसके अंदर जो सप्लाई का वोल्टेज जो V इन है, इधर पर VS जो दिखाया गया है सप्लाई का वोल्टेज, ये जो सप्लाई का वोल्टेज है, ये वोल्टेज तो आउटपुट में अक्रॉस लोड तो आएगा, मगर इसके साथ जो ऑन स्टेट में जब स्विच ऑन था तब इंडक्टर के अंदर करंट स्टोर हो रहा था. ठीक है, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, ये भी आउटपुट के अक्रॉस, लोड के अक्रॉस हम लोगों को मिलेगा. मतलब दो देयर आर टू voltage we are getting in the output. Okay, that is one is input V input and inductor voltage. ठीक है, सप्लाई का वोल्टेज और इंडक्टर का वोल्टेज दोनों मिलके जब ये लोड के अक्रॉस आ रहा है तो क्या हो रहा है?
वोल्टेज बूस्ट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको बूस्ट कन्वर्टर बोलेंगे, ठीक है। एंड नाउ कम टू आवर सेकंड एक्सपेरिमेंट। Here you can see the fundamental circuit of the buck boost converter, buck boost chopper. Okay, buck boost converter. Okay, here you can see, here we are using a chopper here. Okay, and also we are connected inductor and capacitor here. Okay, capacitor are connected parallel to the load. Okay, and this is the source. तो बेसिकली ये चॉपर मतलब क्या होता है? चॉपर मतलब इस कन्वर्ट्स फिक्स डीसी टू वेरिएबल डीसी। ओके, मगर ये बक बूस्ट चॉपर, ये हम लोग बक बूस्ट चॉपर क्यों बोलते हैं इसको? व्हेन द चॉपर इज ऑन कंडीशन देन आउटपुट करंट इज इंक्रीज। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बूस्ट बोलेंगे, बूस्ट चॉपर। एंड व्हेन चॉपर इज ऑफ कंडीशन देन द आउटपुट कन्वर्ट, आउटपुट क्या होगा? करंट क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इसको बक, ये बक ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है, और ये दोनों ही इसमें एक साथ हो रहा है, तो इसको हम लोग बक बूस्ट चॉपर बोलेंगे। तो अभी बक बूस्ट चॉपर में जब ये ऑन पोजीशन, ऑन स्टेट में रहेगा बक बूस्ट चॉपर, व्हेन द बक बूस्ट चॉपर इन द ऑन स्टेट, तब क्या होगा? तब व्हेन द सोर्स, हम लोग जब सोर्स वोल्टेज को अप्लाई करेंगे उसके बाद करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ओके, एंड ऑन स्टेट में जब बक बूस्ट चॉपर का ऑन स्टेट रहेगा, करंट कैसे फ्लो होगा? करंट थ्रू, देखो ये पॉइंट ए से सप्लाई वोल्टेज, फिर उससे पॉइंट ए से ये कहां पर जाएगा? ये थ्रू इंडक्टर में आएगा, ठीक है। पहले चॉपर में आएगा, पॉइंट ए से चॉपर, इधर पर जो स्विच है चॉपर हम लोग यूज किए हैं, तो चॉपर से होते हुए इंडक्टर के बीच में आएगा, एंड इंडक्टर से होते हुए ये लोड में आएगा, ठीक है। एंड लोड से फिर ये कैपेसिटर के अंदर आएगा, ठीक है। तो ऐसे इसका पाथ ये फ्लो होता रहेगा, ठीक है। एंड वी कॉल दिस ऑपरेशन एज CCM. Okay, and what is the meaning of CCM? Continue conduction mode. Okay, in this mode inductor current does not going to zero. Okay, and now come to the off state of the buck boost converter. Here you can see in the off state, जैसे हम लोग ऑन स्टेट में हम लोग क्या बोल रहे थे उसको? CCM, ठीक है, कंटिन्यू कंडक्शन मोड। एंड ऑफ स्टेट में हम लोग इसको बोलेंगे DCM, that is discharge conduction mode. And when the chopper is off, okay, and due to the, क्या होगा इसमें? चॉपर जब ऑफ होगा तो इसमें भी करंट फ्लो होगा, क्योंकि इंडक्टर जब चॉपर ऑन कंडीशन में था तब इसमें करंट, एनर्जी स्टोर हुआ था, अभी उससे करंट फ्लो होगा। तो उसमें जब कुछ चॉपर जब ऑफ कंडीशन में रहेगा तब करंट का पाथ कैसे होगा? पहले इंडक्टर से होते हुए ये लोड में जाएगा, यू कैन सी, एंड लोड से होते हुए डायोड में जाएगा। इस तरीके से यू कैन सी हियर इन द स्क्रीन, इस तरीके से ये ऑफ स्टेट में बक बूस्ट चॉपर इसका करंट फ्लोइंग का पाथ कंप्लीट करेगा। ओके, एंड यू कैन सी हियर इन दिस एंड, ओके, एंड इसका सिग्नल कैसे जनरेट होगा? जब हम लोग जब ये ऑन रहेगा, तब जब ऑन रहेगा तो क्या होगा? ये सप्लाई वोल्टेज जितना VS हम लोग सप्लाई जितना प्रोवाइड कर रहे थे वही लोड के अक्रॉस हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे सिग्नल मिलेगा कुछ ये, ओके, VS, क्योंकि हम लोग VS में जितना अप्लाई कर रहे हैं उतना ही हम लोग लोड के अक्रॉस में मिलेगा। तो उसमें ऐसे आउटपुट में सिग्नल जनरेट होगा, आउटपुट वोल्टेज का सिग्नल ऐसे जनरेट होगा ऑन स्टेट में। इन द ऑन स्टेट एंड द ऑफ स्टेट में क्या होगा? इसमें कोई सिग्नल जनरेट नहीं होगा, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज का कोई सिग्नल जनरेट नहीं होगा, ठीक है। एंड हियर यू कैन सी आउटपुट करंट का सिग्नल कैसे जनरेट होगा? जब ऑन स्टेट रहेगा तो I मिनिमम टू I मैक्सिमम, मतलब इसमें इंडक्टर के अक्रॉस में कितना करंट स्टोर हो रहा था? I मिनिमम टू मैक्सिमम, ठीक है, ठीक है। और इसे सप्लाई वोल्टेज के थ्रू भी हम लोग को करंट मिल रहा था, मगर जी ऑफ कंडीशन में चला जाएगा, जब ये ऑफ कंडीशन में रहेगा, ओके, तो क्या होगा? तब I मैक्स टू I मिनिमम, मतलब इंडक्टर के अंदर जितना करंट स्टोर था वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, डिक्रीज होता जाएगा, इसलिए I मैक्स टू I मिनिमम। मगर करंट इधर पर देखो जीरो नहीं है, ओके, करंट
ये जीरो कंडीशन में नहीं है, तो ऑन कंडीशन में यूजिंग द सप्लाई वोल्टेज एंड ऑफ कंडीशन में यूजिंग द इंडक्टर इसमें करंट फ्लो होता रहेगा, करंट कांस्टेंट फ्लो होता रहेगा. ओके ओके सो I would like to request Pankaj sir to design this please elaborate this circuit in MATLAB. Hello. Yes, sir. Am I audible? Yes sir, yes sir, you are audible. Okay. Is my voice audible, sir? Yes sir, yes sir, your voice is audible. Okay. So is my screen visible? Yes sir, your screen is visible sir. Okay. So पिछले लेक्चर में हम लोग जो है जैसे सर ने बताया कि we plan to do 4 experiments in the previous week, जिसमें से था डीसी बक चॉपर के ऊपर, डीसी बूस्ट के ऊपर और डीसी बक बूस्ट के ऊपर, जिसमें से पिछले लेक्चर में हम लोग डीसी बक चॉपर का रेजिस्टिव लोड और रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड दोनों बना लिए थे. ठीक है. Now we are in a position to simulate the DC boost chopper with resistive inductive load as well as DC buck boost chopper with resistive inductive load. ठीक है. तो हम लोग सबसे पहले आज जो करेंगे, just wait for 1 minute. Okay. So is my screen visible? Yes sir, your screen is visible. So today we will do the experiment number 3. Today we will do the experiment number 3, that is the buck boost chopper with resistive inductive load. So तुम लोग को पता है कि buck boost chopper के लिए हम जो सर्किट यूज करेंगे वो ये है, जो कि बीच वाला सर्किट है, जिसमें से हम लोग LSD कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे. पहले इंडक्टर लगाएंगे, उसके बाद स्विच लगाएंगे, उसके बाद डायोड लगाएंगे. अब तुम लोग को हम बताए थे कि हम लोग जब रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड लेते हैं बूस्ट में अगर हम लोग लोड का नेचर रेजिस्टिव इंडक्टिव लेते हैं RL, तो नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है कि L इज वेरी वेरी मोर एज कंपेयर टू L, वेयर कैपिटल L इज द सर्किट इंडक्टेंस एंड स्मॉल l is the load inductance. Capital L is the circuit inductor and small l is the load inductor, and therefore L can be neglected, and therefore L can be neglected. जो कि हम लोग इससे पहले जब हम लोग इसका डेरिवेशन किए थे उस समय इस चीज को हम लोग देखे थे, एज्यूम किए थे. तो अभी हम लोग जो लोड का नेचर लेंगे, लोड का नेचर इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि L इज वेरी वेरी मोर देन स्मॉल l, हम लोग यहाँ पे इस लोड का नेचर सिर्फ R लेंगे. इसमें हम L को नहीं लेंगे, L को हम इग्नोर करेंगे, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी सर्किट में हमारा एक ह्यूज अमाउंट ऑफ L अवेलेबल है. ठीक है, ये हो गया पहला चीज. दूसरा चीज यहाँ पे यह है
कि तुम लोग को जब हम इसका ऑपरेशन बताए थे तो तुम लोग को हम एक वेव फॉर्म के मदद से बताए थे। जैसे तुम लोग ये वेव फॉर्म देख सकते हो, इस वेव फॉर्म में वीएस का वेव फॉर्म है, वी नॉट का वेव फॉर्म है और आई का वेव फॉर्म है। तुम लोग को बताए थे कि वीएस तो हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, आई हमारा चार्जिंग के समय करंट इंक्रीज करेगा, डिस्चार्जिंग के समय करंट डिक्रीज करेगा, ये हम तुम लोग को बताए थे। ठीक है, जिसमें कि इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट अगर लेंगे तो इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट हम लोग I1 लेंगे, फाइनल वैल्यू ऑफ इसी को भी हम लोग I1 लेंगे और फाइनल वैल्यू ऑफ करंट हम लोग I2 लेंगे, इस तरह से बताए थे। ठीक है, लेकिन तुम लोग को हम ये उस समय क्लियरली नहीं बताए थे कि इसका आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसा मिलेगा। तुम लोग को बताए थे कि आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म हम लोगों को ऐसा मिलेगा, हम ऐसा बताए थे। अब इसका जो पीक वैल्यू है ये क्या ऐसा मिलेगा या ऐसा मिलेगा या ऐसा मिलेगा, दैट वी विल सी टुडे यूजिंग द सिमुलेशन। कि यहाँ पे जो बूस्ट हो रहा है वोल्टेज, इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू जो है वो इनपुट वोल्टेज से ज्यादा मिलना चाहिए। अब यहाँ पे जो है ये सिर्फ टर्न ऑफ मिलेगा अकॉर्डिंग टू सर्किट। इसमें यह है कि जो आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू होगा वो स्ट्रेट भी हो सकता है, ये डिके इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, लेकिन उसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो इनपुट के अपेक्षा ज्यादा होगा। ये तुम लोग को हम बताए थे। तो इसका आउटपुट का नेचर कैसा होना चाहिए, आउटपुट का नेचर, आउटपुट वोल्टेज का नेचर कैसा होना चाहिए, वो भी तुम लोग को आज समझ में आएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वी आउटपुट का वैल्यू क्या होता है, वी आउटपुट का वैल्यू Vs by 1 माइनस के होता है इन द केस ऑफ बूस्ट चॉपर। इन द केस ऑफ बूस्ट चॉपर द V not equal to Vs by 1 minus k, such that if k equal to 0 then V not equal to Vs, and if k equal to 1 then V naught will be equal to infinity. Therefore V naught can be varied from Vs to infinity, and therefore this type of chopper is called boost chopper. ठीक है, तो इस चीज को हम लोग आज एनालाइज करेंगे। तो इसके लिए हम जो सर्किट यूज करेंगे उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, LST होगा, LST। ठीक है, उसके लिए हम मैटलैब ओपन करेंगे। ऑलरेडी हम मैटलैब में एक मॉडल अनटाइटल मॉडल ओपन करके रखे हैं और उसमें हम लोग को जो जो सामान चाहिए वो सब हम लेके रखे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डीसी वोल्टेज से। ये डीसी वोल्टेज हो गया। अब डीसी वोल्टेज के बाद हमको क्या चाहिए, इंडक्टर चाहिए। तो इंडक्टर करने के लिए हम यहाँ पे एक सीरीज RLC ब्रांच है, इसको हम इंडक्टर बना लेते हैं, इसको हम इंडक्टर बना लेते हैं और इंडक्टर बना के इस सर्किट में जोड़ देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये लग गया इंडक्टर। अब इंडक्टर के बाद क्या चाहिए, अब चाहिए स्विच। स्विच के लिए क्या करेंगे, हम लोग को बताए थे, वी विल यूज अ आइडियल स्विच, वी विल यूज अ आइडियल स्विच। इसको रोटेट कर लेंगे हम लोग। रोटेट करने के बाद स्विच को इस बीच में लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, स्विच लगाने के बाद हमारे पास पल्स जनरेटर है, तुम लोग को पिछले क्लास में हम बताए थे। तो पल्स जनरेटर को हम गेट पल्स में लगा देंगे। अब क्या करना है, अब इधर हमारा डायोड है और लोड है। क्या करेंगे, डायोड के लिए हमारे पास एक डायोड ले लिए हैं, इस डायोड को इस जगह पे लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा लोड है, तो लोड हम यहाँ पे RL नहीं लेंगे, R लेंगे, बिकॉज L को हम लोग इग्नोर करेंगे, स्मॉल l को, बिकॉज कैपिटल L इज वेरी क्वाइट हाई, सो वी कैन कंसीडर R ओनली। तो इसको हम लोग रोटेट करेंगे और इसको हम लोग R बना देंगे। सपोज इसका वैल्यू दे दिए 25 ओम्स। ठीक है, 25 ओम्स इसका वैल्यू दे दिए। अब क्या करेंगे, R को लगा देंगे। अच्छा, R को लगाने से पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक अमीटर लगा देते हैं जिससे कि हमको आउटपुट करंट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक अमीटर लगा दिए जिससे कि हमको आउटपुट करंट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से लगा दिए। अब हम क्या किए, इस रेजिस्टेंस को इस सर्किट में जोड़ दें। यानी देखो, जो सर्किट हम यहाँ बनाए थे बूस्ट वाला,
वही सर्किट हम यहाँ पे बनाए हैं। पहले डीसी सप्लाई, उसके बाद इंडक्टर, उसके बाद स्विच, उसके बाद डायोड, उसके बाद लोड। पहले डीसी सप्लाई, उसके बाद इंडक्टर, उसके बाद स्विच, उसके बाद डायोड, उसके बाद लोड। ठीक है, अब हम 2 वोल्ट मीटर लेंगे। एक वोल्ट मीटर से हम इनपुट वोल्टेज को मेजर करेंगे और एक वोल्ट मीटर से हम आउटपुट वोल्टेज को मेजर करेंगे। एक वोल्ट मीटर से इनपुट वोल्टेज को मेजर करेंगे, एक वोल्ट मीटर से आउटपुट वोल्टेज को मेजर करेंगे। अब इसको हम सेव कर लेते हैं पहले, ठीक है ना, इसको हम सेव कर लेते हैं, डीसी बूस्ट, इसको हम सेव कर लिए। सेव करने के बाद हमारे पास यहाँ पे स्कोप है, स्कोप को हल्का सा बड़ा कर लेते हैं और स्कोप में हमको एक्सिस चाहिए 4, तो 4 एक्सिस कर लिए। ठीक है, अभी सबसे पहले लेके गए इनपुट वोल्टेज को, सबसे पहले लेके गए इनपुट वोल्टेज को। ठीक है, उसके बाद हम लेके गए आउटपुट वोल्टेज को, उसके बाद हम लेके गए आउटपुट करंट को, और लास्ट में हम लेके गए जो हमारा गेट पल्स है, उस गेट पल्स का नेचर को पता करने के लिए हम गेट पल्स को भी हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं ताकि हमको गेट पल्स का नेचर पता चले। ठीक है, तो सर्किट हमारा मोटा मोटी कंप्लीट है, सर्किट हमारा मोटा मोटी कंप्लीट है। हम एक बार चेक कर लेते हैं। डीसी वोल्टेज सोर्स 100 वोल्ट का है पीक, ओके। रेजिस्टेंस का वैल्यू है 25 ओम्स, ओके, इसका वैल्यू ठीक है। पल्स जनरेटर का वैल्यू है उसको चेंज करना पड़ेगा, इसका एम्पलीट्यूड कर देंगे 100, पीरियड कर देंगे 0.02 और पल्स विड्थ का वैल्यू मान लेते हैं 50 रखते हैं, पल्स विड्थ का वैल्यू 50 रखते हैं। ठीक है, ओके, तो पल्स जनरेटर को हम चेंज करें। अभी हमारे पास रेजिस्टेंस का वैल्यू भी 25 है, यानी कि इसका पीक करंट का जो वैल्यू आएगा, मतलब करंट का वैल्यू आना चाहिए। हालांकि यहाँ पे तो लोड रेजिस्टिव इंडक्टिव है, तो इसमें तो करंट पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, मतलब हमारा वेवफॉर्म इस नेचर का आना चाहिए। मतलब पहला हमारा इनपुट वोल्टेज तो स्ट्रेट लाइन आएगा 100 वोल्ट का, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आउटपुट वोल्टेज हमको पता करना है कि आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे कैसा मिलेगा, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज शुड बी मोर देन इनपुट वोल्टेज, इजंट इट, और करंट जो है हमारा इस नेचर का मिलना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करेंगे, सेव करेंगे, सेव करने के बाद रन करेंगे। रन करने के बाद अब हम इसका स्कोप में डबल क्लिक करेंगे। देखो इसका वेवफॉर्म को बढ़िया से तुम लोग ऑब्जर्व करो। पहला हमारा इनपुट वोल्टेज है जो कि 100 वोल्टेज पर फिक्स्ड है, दूसरा आउटपुट वोल्टेज है। देखो आउटपुट वोल्टेज सिर्फ हमको टर्न ऑफ पल्स में मिला है, मतलब जब हम स्विच को ओपन किए हैं उस पल्स में मिला है, और उसी पल्स में हमको आउटपुट करंट भी अकॉर्डिंगली मिला है। ठीक है, और उसके बाद जो पल्स है वो पल्स हम लोग को देख रहा है कि 50% के लिए टर्न ऑन है, फिर 50% के लिए टर्न ऑफ है, 50% के लिए टर्न ऑन है, फिर 50% के लिए टर्न ऑफ। अभी यहाँ पे जो सबसे मजे वाली देखने वाली बात है कि तुम यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज का पीक देखो कितना पर गया है। इसका आउटपुट वोल्टेज का पीक लगभग 350 के ऊपर है, 350 के ऊपर है, मतलब 100 वोल्टेज होना चाहिए हम लोगों का। लेकिन यहाँ पे तुम देख सकते हो कि दिस इज द पीक इज वेरी हाई, लेकिन बूस्ट वाले में पीक का वैल्यू हम लोगों को 100 के लेवल में ही मिला था, तुम लोग याद करो। लेकिन बूस्ट वाले में, बक वाले में हम लोग को जो आउटपुट वोल्टेज है वो 100 के लेवल में ही मिला था, लेकिन बूस्ट वाले में आउटपुट वोल्टेज इस फॉर्म का मिल रहा है। इसका मतलब हम लोग का इस समय जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, जो कि हम लोग के मन में कंफ्यूजन था, इसका आउटपुट वोल्टेज का नेचर कैसा होना चाहिए, इसका आउटपुट वोल्टेज का नेचर ऐसा होना चाहिए, इस तरह से। इस तरह, such that the peak voltage, the peak value of the voltage, जो peak value है, this peak
this peak value of the voltage V peak is higher, very more, is more than the peak of VSP or is more than the peak of VS. इसी के लिए इसको हम कहते हैं बूस्ट कन्वर्टर या बूस्ट चॉपर। तुम देख सकते हो यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो लगभग कितना के आसपास है, चेक कर लेते हैं। देखो लगभग 350 के आसपास है, 350 के आसपास है, ठीक है। अभी हम ड्यूटी साइकिल कितना रखे हैं, अभी हम ड्यूटी साइकिल रखे हैं 50, अभी हम ड्यूटी साइकिल रखे हैं 50। अगर हम ड्यूटी साइकिल को 20 कर देंगे, अगर हम ड्यूटी साइकिल को पल्स विड्थ को 20 कर देंगे, उस समय हमारा आउटपुट वोल्टेज जो पहले जितना मिल रहा था उससे कम मिलना चाहिए। उसको चेक करते हैं, रन कर दिए हैं, देखो इसका हम लोग को कैसा मिल रहा है, तुम देख सकते हो। इसका पीक कितना है, टर्न ऑन टाइम यहाँ पे बहुत कम है। पीक कितना है, पीक सिर्फ 200 वोल्ट्स का है। तुम देख सकते हो पहले जो 350 वोल्ट का था अभी सिर्फ 200 वोल्ट्स का है, ठीक है। उसी जगह में अगर हम लोग इस पल्स विड्थ को बढ़ा देंगे, मान लो पल्स विड्थ को कर दिए 85, पल्स विड्थ को मान लो हम कर दिए 85, यानी ड्यूटी साइकिल को अगर हम 0.85 कर देंगे, उस समय तो हम लोग का आउटपुट वोल्टेज बहुत ज्यादा आना चाहिए। देखते हैं कितना आता है। देखो इसका पीक देखते हैं कितना है, पीक 850 वोल्ट के आसपास है। 850 वोल्ट जो 100 वोल्ट का हम लोग का इनपुट वोल्टेज था, वही हम लोग का आउटपुट वोल्टेज का जो हाफ पल्स में हमको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो 800 वोल्ट के आसपास है। यानी इसका अगर एवरेज वैल्यू निकालेंगे 100 से बहुत ऊपर ही आएगा, ठीक है। ये आप इसको अगर मान लो हम 60 कर देते हैं या 50 कर देते हैं, उस समय क्या होगा, 60 या 70 कर देते हैं या मान लो 60 कर देते हैं, उस समय भी हमको वोल्टेज ज्यादा मिलेगा लेकिन 850 से कम मिलेगा। रन करते हैं, इससे हमको मिला, लेकिन कितना पीक मिला इसका जो पीक है वो 450 है। 50 में मिला था 350, 20 में मिला 200, 85 में मिला 850 और 60 में कितना मिला 450। यानी इसका जो वोल्टेज मिलेगा वो डेफिनेटली 100 ऊपर ही मिलेगा। एंड दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ कन्वर्टर और दिस टाइप ऑफ चॉपर इज कॉल्ड बूस्ट चॉपर। समझ में आया सबको कि बूस्ट चॉपर इसको क्यों कहते हैं? ताली वंसाली समझ में आया? कुंदन कुमार, हाँ सर। रवि कुमार, रवि कुमार को समझ में आया? सचिन कुमार को समझ में आया? यस सर। सरोज कुमार मातो को समझ में आया? यस सर। अभिजीत कुमार को समझ में आया? यस सर। शिवम जायसवाल को समझ में आया? यस सर। शिल्पी साहब को समझ में आया? शिल्पी साहब को समझ में आया? That means they are not doing the class properly. सोनू कुमार मरांडी को समझ में आया? सोनू कुमार मरांडी। जतिन कुमार झा को समझ में आया? जतिन कुमार झा। अरविंद कुमार। यस सर। ओके, जो बच्चा लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है प्लीज रिस्पॉन्ड, अदरवाइज हम क्लास से बाहर निकाल देंगे तुम लोगों को। तो ये हो गया हम लोग का बूस्ट चॉपर। इसको हम लोग सेव कर लिए हैं, ठीक है ना।
ओके, अभी इसके बाद हम लोग जिस चॉपर को बनाएंगे वो है बक बूस्ट, इसके बाद जिस चॉपर को हम लोग बनाएंगे उसका नाम है बक बूस्ट चॉपर। और बक बूस्ट चॉपर में हम किस स्विचिंग अरेंजमेंट को यूज करते हैं? SLD, यानी पहले स्विच रहेगा, उसके बाद इंडक्टर रहेगा, उसके बाद बैट रहेगा, लेकिन रिवर्स पोलैरिटी में रहेगा। और उसी के साथ तुम लोग याद करो कि इस केस में हम लोग का जो आउटपुट वोल्टेज मिला था, तुम लोग याद करो कि बक बूस्ट के केस में, बक बूस्ट जब तुम लोग को हम पढ़ाए थे उस समय जो इसका हम लोगों का आउटपुट वोल्टेज मिला था वो आउटपुट वोल्टेज का पोलैरिटी था -V0। याद करो, इसका पोलैरिटी -V0 था। यानी कि इस समय हम जो वेवफॉर्म बनाएंगे तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज का जो पोलैरिटी वोल्टेज मिलेगा वो नेगेटिव एक्सिस में मिलना चाहिए, एज पर आवर थ्योरेटिकल कंसेप्ट ना। आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव एक्सिस में हमको मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें हम लोग जब डेरिवेशन किए थे तुम लोग याद करो, जो कि ये करंट इस तरह, इस लूप में करंट इस तरह फ्लो कर रहा था और इस लूप में करंट इस तरह फ्लो कर रहा था, तो जो कि इस तरह फ्लो कर रहा था इसका पोलैरिटी प्लस माइनस लिए थे और इसका पोलैरिटी प्लस माइनस लिए थे इस तरह से, इसलिए इसको हम लोग -V0 लिखे थे, याद है? तो यानी कि इस समय जब हम इसको सिमुलेट करेंगे तो इसका आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव आना चाहिए, जो भी आए लेकिन नेगेटिव आना चाहिए। और इसमें हम लोगों का, इस चॉपर में हम लोगों का, तुम लोग को पता है कि बक बूस्ट के लिए आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? KVS/1 - K। यानी अगर K का वैल्यू 0 होगा, इन दैट केस द V0 विल बी 0। इफ K is equal to 1, in that case the V0 will be equivalent to infinity. And if K is equal to 0.5, in that is 50, in that case V0 will be equivalent to Vs. Therefore here the V0, the range of V0 will be from 0 to infinity. इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं बक बूस्ट चॉपर। ये तुम लोग को पढ़ा दिए थे पहले। अब इसको हम लोग सिमुलेट करके देखेंगे कि थियोरेटिकल में हम लोग जो जो चीज पढ़े थे प्रैक्टिकली वैसा हो रहा है या नहीं। मतलब थियोरेटिकली हम लोग पढ़े थे कि ऐसा ऐसा होता है, आउटपुट वोल्टेज हम लोग को नेगेटिव मिलता है, फिर आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। अगर के का वैल्यू 0.5 से कम होगा तो वोल्टेज आउटपुट से कम, इनपुट से कम मिलेगा। अगर के का वैल्यू 0.5 से ज्यादा होगा उस समय आउटपुट वोल्टेज इनपुट से ज्यादा मिलेगा। अगर के का वैल्यू 0.5 होगा उस समय आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज बराबर मिलेगा। ये सब तुम लोग को पढ़ाए थे हम इससे पहले। उसी चीज को अभी हम लोग सिमुलेशन करके देखेंगे फिर से कि क्या वो हम जो पढ़ाए थे थ्योरेटिकल कंसेप्ट या जो सब्सिस्टेंस जो अभी बताए हैं क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग किस अरेंजमेंट को यूज करेंगे? SLD और D का पोलैरिटी उल्टा होना चाहिए। SLD और D का पोलैरिटी उल्टा होना चाहिए, ठीक है। इसी में हम लोग करेक्ट करेंगे, इसको उतना अलग से करने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले इस सर्किट को हम ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहला काम जो करेंगे सर्किट को ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे